Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Okay, so can you see the screen? Rules of law and laws of. Okay, so कितने participant है अभी? 63 joining. Okay, so today we are going to start rules and laws of Boolean algebra, where we will be seeing some laws that are used to reduce the Boolean expression. Okay, so Sir, can you repeat what you taught till now? I joined it. Till last class, in last class, This class. अभी कुछ नहीं पढ़ा है, Yes. बस स्लाइड है, कुछ नहीं पढ़ा है, वेट I करते हैं. thought you started. No. I was just saying that today we are going to start this topic, rules and laws of Boolean algebra. That's it. Okay, so these laws are useful. Suppose you have a Boolean expression like this form, ... Okay, so imagine if you are told to implement this, so what will happen? It will be quite complicated to draw this on even on paper, and it will be more complex to implement it on digital trainer kit. Okay, so if a expression where many variables are involved, many and or invert and other operations are involved, so what is the consequences? Large number of gates are used. Large number of logic gates. Large number of, you have to use large number of logic gates. Then you have to interconnect them. So complex connections. There will be a mesh of wires. Okay. एक बार कर लोगे तो you will not be able to identify which is connected with what. And because of this, large area will be occupied. Okay, and electronic engineer, design engineer who is designing a laptop or mobile or any electronic device, his main goal is to optimize power so that it can be operated on a nominal battery and area, so that in limited given area many functionalities can be added, and cost, and final thing is speed. ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई मोबाइल मिले जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, हल्का है, लाइट वेट है, छोटे मोबाइल में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, हमारे बजट में है, और उसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, रैम एंड प्रोसेसर्स आर वेरी गुड, मींस it can operate at high speed, means it can execute many functions at a time. आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, साथ में बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा है, like this kind of thing.
सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, डिवाइस इंजीनियर का ये मेन गोल होता है। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, बट ये होता है कि भाई जो कंज्यूमर है वो तो ये चीज देखेगा। अब इमेजिन कर लो आप कि कोई ऐसा फंक्शन है जो लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, मींस एरिया बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, if you have to involve large number of logic gates, so it is directly related to cost also. ओके, तो ये सेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाता। हमारे डेली रियल लाइफ एग्जांपल से ही आप इसको देख सकते हैं कि भाई अगर हमें मोबाइल सिंपल सा लेना है, जो आजकल ऑलमोस्ट सबने लिया है फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेस, सो वी जनरली see this kind of things, this kind of specifications. Okay, so rules of Boolean algebra. The task of rules and laws of Boolean algebra is to simplify it. Okay, so simplify this so that it can be implemented with fewer logic gates. ओके, इमेजिन यहाँ पे मान लीजिए 15 लॉजिक गेट्स लगते हैं, तो ये हम कोशिश करेंगे ये कम से कम गेट्स में, फॉर एग्जांपल 5 लॉजिक गेट्स में हो जाए। सो कनेक्शंस भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे, एरिया भी डिक्रीज होगा, और ऑब्वियसली कम लॉजिक गेट्स है तो पावर भी कम लेगा। ज्यादा लॉजिक गेट्स ज्यादा पावर, कम लॉजिक गेट्स कम पावर। ओके, कॉस्ट भी कम हो जाएगा, एंड स्पीड, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो बट ऑल्सो स्पीड विल इम्प्रूव because the signal has to travel through less number of gates, so speed bhi improve hoga. So this is the main objective of this rules and laws of algebra. This is used for Boolean function simplification. So this is used for Boolean function. जो भी laws अभी हम पढ़ेंगे उसको हम लगाएंगे कैसे given Boolean function को simplify किया जाए. So first we will see the law and then we will take some examples. Using this law, we will be simplifying a given Boolean expression. That is also your experiment. That was your experiment number 2 in the lab part. So before starting, I would like to start with this duality theorem. So because this will be used almost in every rule. So the duality theorem says that dual of the Boolean function, if any Boolean function is given, so dual of the Boolean function is obtained by interchanging the logical AND operation with OR operation. So what you have to do, you have to interchange AND operation with OR. Reverse is also true. You can change OR operation with AND. Zeros with 1. So if 1 is given, then you can interchange it with 0. And reverse is also true. You can interchange 0 with 1. Okay. For example, A plus 1. This is given, so its dual form will be A will be remain as it is, plus will be replaced by dot, and 1 will be 1 can be A plus 1 is 1. 1 can be replaced with 0, that kind of thing. Okay, so this is the dual theorem like this. So we will be using it a lot. So now I will start with the laws of Boolean algebra. So next page. So laws and rules of Boolean algebra. So name of the law. And because of this dual theorems, the two forms are possible, AND form and OR form. Okay, so first law. ठीक है, अब कुछ लॉज है, कुछ रूल्स है, कुछ थ्योरम्स है, तो भाई मैं एक ही टेबल में लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमें ये नहीं बताना है कुछ लॉज रूल्स थ्योरम्स क्या है। लॉ अलग होता है, थ्योरम्स अलग होती है, ठीक है, तो हमारे लिए सब एक ही है, वी हैव टू डायरेक्टली यूज दैट। सो एक समरी फॉर्म में हम बता दे रहे हैं, जिसका प्रूफ जहां पे पॉसिबल होगा मैं उसको वहां बता दूंगा। ओके, so first is identity law. Okay, so in AND form, 1, this is the AND, this will be the symbol for AND operation, and this will be the symbol for logical OR operation.
ओके, डॉट लगाया है तो एंड, मतलब एंड गेट से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस लगाया है तो और गेट से. सो 1.a is simply a. ओके, एंड अगर इसका हम डुअल फॉर्म देखें तो 1 is replaced by 0, a will remain as it is, dot will replace by plus, और on the right hand side a will be replaced by a. इस साइड में जनरली ये भी रूल नहीं पता, बट a plus 1 is 1. तो इसका अगर हम डुअल फॉर्म लिखेंगे तो a dot 0 is 0, ये होता है 1 will be replaced by 0. This is the dual form. ओके, सो इसको बहुत इजीली आप प्रूफ, इसको शायद मैंने प्रूफ बताया भी था, यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली. ओके, सो फर्स्ट इज you take one AND gate, give one a, so the output is 1 dot a. Okay, so if a is 0, output will be 0. If a is 1, output is 1. That's why they have written that the output will be dependent on a. And for this, 0 plus a gives you a. So if you take OR gate, 0 plus a will be a. So if a is 1, output is 1. If a is 0, output is 0. Okay, so that's why this is written. Next is null law, which says that 0 dot a is 0. So one input of AND gate is 0. So no matter whatever is the value of a, output is going to be 0. And its dual form 1 plus a is equal to 1. So one input of OR gate is 1. So whatever is the value of a, that is not going to affect the output. Output will be always 1 because of this input. So this is a null law. Then idempotent law, which says that a dot a is equal to a, and its dual form is a dot will be replaced by plus, a is equal to a. Okay, so this can be very easily proved. अब यहाँ पर a दे दीजिए, a dot a. So if a is 0, output is 0. ठीक है, तो a dot a को क्यों ना a ही लिख दें. अगर a 0 है तो a dot a 0 dot 0 is 0. So simply you can write it as a because a was 0. And if a is 1, 1 dot 1 is going to be 1. So you can simply write it 1. So a ही लिख दो. So a dot a is 1. Similarly here, if a is 0, so 0 plus 0, 0 plus 0 becomes 0. What that was the value of a. If a is 1, so 1 plus 1 becomes 1. Again that is equal to a. So दो बार ना लिखते हुए उसको एक ही बार हम लिख सकते हैं. So this is the idempotent law. Then inverse law, which says that a dot a bar is 0. तो अगर AND गेट में a है, दूसरे पे a कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा. तो मतलब AND गेट का एक इनपुट हमेशा ही 0 रहेगा. So output is going to be 0 always. And its dual form, that is OR form, is a plus a bar. 0 will be replaced by 1. So if it is 0, it is going to 1. So 1 odd with 0 odd with 1 gives you 1. If this is 1, this will be 0. So output is again going to be 1. Then commutative law. This law you have already seen in your +2 times or in school, which says that a dot b is equal to b dot a. This is for 2 variables. This is applicable for 3, 4, 5, any variables. And in OR form, we write a plus b is equal to b plus a. Okay, agar if you have 3 variables, no, ठीक है. So सिग्नल का ऑर्डर चेंज भी कर दो और ऑपरेशन सही सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then we have associative law. This is also being taught in school. Associative law. Okay, so if we have 3 signals, okay, so suppose we have to perform AND operation using 2 input AND gate. So what we can do, we can first perform AND operation between A, B, then the result can be ANDed with C. Or what we can do, we can first perform AND operation between B and C, then the result can be ANDed with A. Or we can perform first AND operation between A and C,
then the result can be ANDed with B, or what we can do, we can perform AND operation between A B, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो बस इतना ही होगा। हाँ बस 3 होंगे, ठीक है। सो चाहे आप ए बी इस तरह से सी ये करिए, या this is what a dot b dot c is, this is a dot b and this is a dot b dot c, or what you can do, you can give first b and c, then you can AND the result with a, okay, or you can similarly implement the third combination. And the same is the true for OR form, which is that a plus b plus c. So this is for 2 input OR gate, okay. अगर हमारे पास 3 input OR gate है तब तो कोई problem नहीं है, then you can apply commutative law, कोई भी order में आप दे सकते हो. This is the restriction when we have 2 input OR gate. So a plus b plus c, so it can be written as a plus b plus c, b और c को OR कीजिए, और आप a plus c भी कर सकते हैं पहले, then you OR with b like this. So this is what meant by associative law. Then distributive law, important one, बहुत important law है, बहुत काम आता है reduction simplification में. Distributive law, which says that a plus b dot c is equal to first variable, ये single variable जो है वो, then this variable plus b, और उसके बाद ये वेरिएबल प्लस सी. ओके, सो वी विल प्रूव दैट, डोंट वरी, अभी हम इसको प्रूव करेंगे. एंड इन OR फॉर्म a as it is, plus will be replaced by dot, and b dot will be replaced by plus c. On the right hand side I can write it as a dot b, this term dot will be replaced by plus a dot c. तो ये तो सिंपल है, इसको मैं प्रूव करके अभी दिखा दूंगा ये कैसे आया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. देन वी हैव absorption law. Absorption law, which says that, here we will write AND form then OR form. It says that a into a plus b is a, and its OR form is a plus a dot b is a, okay. And then finally De Morgan's law, very important one. ये भी है but De Morgan's भी बहुत helpful law है. So De Morgan's law, so AB bar plus, sorry, A dot B whole bar, this is NAND operation, this is NAND operation, this is equal to A bar plus B bar, so this is equal to A bar, this is B bar, and give one OR gate. Okay, so suppose you want to prove this, so what you can do, you can draw a truth table for this, you can draw a truth table for the right hand side, and you can compare them. Okay, this is the way that it can be proved. The another way is using set theory. Okay, so set theory हमने पढ़ा नहीं है अभी, इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है. किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो भाई प्रूव करना है, so he can refer set theory and he can prove that. Okay, so हम उस set theory में अभी नहीं जाएंगे इसको प्रूफ के लिए. In OR form I can write it as a plus b whole bar, this is NOR operation, a plus b whole bar is equal to a bar dot b bar, so this is equal to
A bar B bar and give one AND गेट. So इसको इस तरह से भी बना सकते हैं A B, टेक वन सिंपल OR गेट. नॉट गेट बनाने की जगह कभी कभी यहाँ पे बबल भी यूज कर सकते हैं. This represents that this A and B are complemented. This is the symbol for NOT gate, and similarly you can draw it as A B like this. Okay, in this form it can be also drawn. Okay, so these are some important law that are being followed. बाकी लिटरेचर गूगल करोगे तो कुछ 2-4 एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं. इन्हीं के वर्जन से वो डिराइव किए जाते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इन्हीं के 1-2 कॉम्बिनेशन करके वो दिखाया जाता है तो कोई लिमिट नहीं है. बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन. आप देखेंगे कि इसका यूज करके ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व हो जाती है. ओके, एंड नाउ आई विल गिव यू द प्रूफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, क्योंकि इसमें से बाकी ऑलमोस्ट तो सारे प्रूव हो चुके हैं. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कि भाई ये कैसे आया. ठीक है, ये भी इट इज ऑल्सो कॉमन. प्रूविंग दिस इज ऑल्सो इजी. सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. ओके, सो आई एम गिविंग द प्रूफ ऑफ दैट. बाकी सबका तो ऑलमोस्ट प्रूफ क्या है मैंने बता ही दिया है. सो दिस एंड फॉर्म A plus B dot C is A plus B and A dot C. So distributive law, its and form, it says that A plus B dot C is equal to A plus B, A plus C. This is dot operation. Okay, मतलब B and C AND operation and the result is OR with A is equivalent to A and B OR operation, A and C OR operation, and their AND operation like this. So we will start with left hand side. So we have A plus B dot C. Okay, so A can be written as A dot 1, identity law, or 1 dot A. Okay, plus B dot C. Okay, so A dot 1 is A, identity law. Then 1 can be written as 1 plus B. Okay, 1 को मैं 1 plus B, 1 plus A, 1 plus C, 1 plus कुछ भी लिखूँ वो 1 ही रहेगा हमेशा. Okay, because one input of OR gate is 1. So this is our a null law, OR form. ठीक है. So B dot C. So this was OR form like this, and then opening bracket. So I have A plus A dot B plus B dot C like this. Now I can again write it as A dot 1 plus A dot B plus B dot C. Okay, so you can see that I can take B common out of this. यहाँ से मैं B common निकाल सकता हूँ और ब्रैकेट में बचेगा A dot C. ठीक है, तो अगर मैं इसमें से B कॉमन निकालता हूँ, सो ब्रैकेट में बचेगा A B कॉमन A plus C. So one term is received. Okay, and now what I need, I want A plus B. Okay, तो किसी तरह से अगर यहाँ पे A dot C आ जाता है, if I am able to convert this into A dot C, तो वो A dot C को मैं कॉमन निकाल लूंगा. So I have A dot C plus A dot B like this. So again I can write A in this form. A is equal to A dot 1
and one can be written as 1 plus c, and then this side I have b dot a plus c. Okay, like this. And इसके बाद e dot e plus b plus e dot c, नहीं ए बी, यहाँ क्या किया है, नहीं यहाँ भी, सॉरी ये नहीं करना था, सॉरी इसको भी ऐसे ही रहने दो। ओके, सो अभी इसको ऐसे नहीं निकालते, इसको पहले 1 प्लस सी लिखते हैं, ए 1 प्लस सी प्लस ए डॉट बी प्लस b dot c, and that can be written as a plus a dot c plus a dot b plus b dot c. This a can be written as a dot a, then we have a dot c plus a dot b plus b dot c. Okay, so this a common a plus c. Okay, so now you can see that if I take a common out of this, so in bracket I have a plus c, and if I take b common out of this, I will have a plus c. So taking a plus c common, so I have a plus c, a plus b. Okay, so this is equal to right hand side. तो अब आपको रूल्स तो बता दिए हैं सारे, ठीक है। और अब जैसे कहीं पर हमें किसी कभी ए को ए डॉट ए लिखना होता है, कभी हमें कुछ एक्सप्रेशन को 2 बार लिखना होता है। आगे हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे जहां पे हमने किसी एक्सप्रेशन को दो, जैसे बी डॉट सी है तो बी डॉट सी को 2 या 3 बार लिखना होता है। तो उसका कोई मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि भाई कोई सेट ऑफ रूल्स है, रूल नंबर 1 डू दिस, रूल नंबर 2 डू दिस, जैसे हमने अभी तक देखा है कन्वेंशनल वे में, ठीक है। सो दिस इज प्योर इंटेलिजेंस एंड प्योर प्रैक्टिस, ठीक है। इंटेलिजेंस भी नहीं, मैं तो प्रैक्टिस कहूंगा, जितना प्रैक्टिस कहोगे आपको उतना समझ में आएगा कि हाँ इसको ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको वैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में यही है। और जब एक्सप्रेशन बड़ा होता जाता है, जब ये तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, जब एक्सप्रेशन बड़ा होने लगेगा तब बहुत प्रॉब्लम आएगी, वहां पे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए जो तरीका होता है दैट इज के मैप, उसमें कुछ याद नहीं रखना होता। ओके, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसमें सेट ऑफ रूल्स। सो के मैप में देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, उसको फॉलो करना होता है। सो इट इज गारंटेड दैट द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी इन द रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिमाग लगाना है, किसको रिड्यूस करना है, किसको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये, क्योंकि हमें ये सीखना है तो हम इसको करेंगे, ठीक है। बट जब नेक्स्ट के मैप हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन हम वी विल बी एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ के मैप। ओके, सो वी विल सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह, और इन सब के 2-3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। एंड in the next class we will start with the K-map thing. तो कुछ एग्जांपल्स जितने भी पॉसिबल है इस टाइम में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ओके। सो उसके बाद फिर आप ट्राई करिएगा। सो एग्जांपल 1, ए बी बार प्लस ए बार बी होल बार ए प्लस बी, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट यू कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम हियर, ओके। दिस इज इन ब्रैकेट, okay। So by applying de Morgan's theorem, this can be written as this form. So ab bar whole bar dot, ठीक है, फर्स्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, देन सेकेंड टर्म a bar b whole bar, and this is as it is a plus b, okay। Then you can again apply de Morgan's theorem, De Morgan's theorem,
then you can again apply De Morgan's theorem. Okay, so this is in NAND form. This can be converted into bubbled or this kind of thing. So I can write it as A bar plus B. एक कॉम्प्लीमेंट तो पहले था, इसकी वजह से एक और आ जाएगा. Similarly here, A complement and one more complement plus B, and then this is as it is. This is again because of this is no, this was because of De Morgan's theorem. Like सर बी बार नहीं आएगा. yeah, B bar. Thank you. So this becomes A bar plus B. ठीक है, B complement का complement फिर से वही हो जाता है. ठीक है, and here we have A plus B bar A plus B. अब इसको तो हमने ये सॉल्व कर लिया. ठीक है, अब अगर इस यहाँ पे हम देखते हैं, सो जो B है, यहाँ B है, यहाँ B बार है. सो B डॉट B बार X डॉट X बार बिकम्स 0. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो कुछ टर्म 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो करके देखते हैं. A बार प्लस B, इसको भी कर सकते थे. ठीक है, सो A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस A डॉट B बार. अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया, ये होना चाहिए था B बार डॉट E. तो आई हैव डायरेक्टली रिटन दैट A डॉट B बार. ओके, मेंटेनिंग द प्रेसिडेंस, पहले A B एंड देन C. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं अलग से कि मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया. ठीक है, इट इज अंडरस्टूड. एंड देन वी हैव B बार डॉट B. Okay, so this B bar dot B will become 0. We have A bar plus B. और क्या रिडक्शन हो सकता है इसमें? सर ए डॉट ए बन जाएगा और वो Plus? इधर से ए कॉमन आके वो भी ए बन जाएगा. अगर यहाँ से मैं A कॉमन लेता हूँ, अच्छा पहले तो मैं लिख देता हूँ A डॉट B. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. A डॉट B बार. कभी कभी कुछ स्टेप एक्स्ट्रा मिक्स कर दो तो फिर प्रॉब्लम होती, तो स्टेप बाय स्टेप चलते. ओके, सो यहाँ पर हो गया हमारे पास A डॉट B एंड देन वी हैव A डॉट दिस थिंग B बार. अब क्या कर सकते हैं इसमें? अगर यहाँ से मैं A कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी ले सकते हैं. सो A कैन बी टेकन इंटायरली कॉमन, राइट? यहाँ से A हम सबसे कॉमन ले सकते हैं. यस सर. एंड देन इट बिकम 1 प्लस B प्लस B बार. B बार. और 1 से कुछ भी ऐड करो, सेम ही. this and B plus B bar is also going to be 1, so this will going to be 1. So we have A bar plus B dot A dot 1. ये टर्म सिंप्लीफाई हो गया. Now opening this bracket, so we have A dot A bar plus A dot B, and this is going to be 0. Okay, so we have 0 plus A dot B, and this becomes A dot B. So simple है expression A dot B. अब आपको क्या करना है यहाँ, अगर इसको implement करते, so 1 2 3 NOT gate, इसको as it is simplify करते तो 3 NOT gate, 1 and 2 OR gate, and 1 2 3 AND gate. इतने आपको गेट्स यूज करने पड़ते, 3 4 5 6 7 8. ठीक है, और तीनों की अलग अलग डिफरेंट आईसीज परचेस करनी पड़ती है. ऐसा भी नहीं है कि एक आईसी में सब अवेलेबल है. सो 3 आईसीज यू हैव टू यूज. ओके, एंड you have applied the rules of Boolean algebra and you can see that just you have to use one OR gate. भाई उसको implement करोगे, इसको implement करोगे, तो ये होता है. पहले डायरेक्ट implement करने से पहले बैकग्राउंड रिसर्च वर्क कर लिया और एंड रिजल्ट. It should be AND gate. Yes sir. sorry, AND gate, yes.
one AND gate. You have to use one AND gate. That's it. Okay, so we will take few more. जो भी है, we have 15 minutes. So we will see that how many questions we are able to solve, and then rest you have to practice. फिर आपकी practice पर depend करेगा किस तरह से आप उसको कर पाओगे. ठीक है? सर वो प्रैक्टिकल वाला ले लो क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट वाला, वो जो उसमें. अच्छा, एक्सप्रेशन याद है आपको? सर एक्सप्रेशन तो नहीं सर, एक मिनट. चलो मैं 1 मिनट, वेबसाइट मुझे ओपन करना पड़ेगा, प्लीज वेट. ओके, सो मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट. अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो आप मुझे बता दीजिए. मीनवाइल आई एम ओपनिंग. आपका तो कल क्विज है ना? Yes, यस सर. ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी. ओके, सो implementation of Boolean algebra using Labman. क्वेश्चन क्या होगी? अन्य क्या? हेलो सर टाइम ड्यूरेशन क्विज की 50, अभी 10 to 15 मिनट्स है. अभी मेरे पास भी डिटेल्स नहीं है. द कोर्स कोऑर्डिनेटर इज प्रिपेयरिंग क्विज, सो फाइनल डिटेल्स आ जाएगा. ज्यादा से 10 to 15 ही होता है वैसे तो, उससे ज्यादा नहीं होता. ओके, सो एक्सप्रेशन इज a bar b plus bc bar plus bc. a bar b plus bc. So expression was a bar b plus bc bar plus bc plus a b bar c bar. This was given in your lab experiment 2 digital part. ठीक है, मैनुअल में भी सॉल्व कर रखा है, बट मेरा तरीका कुछ अलग है, मैनुअल का तरीका अलग है. हाँ, एक और चीज, देयर मे बी केसेस, देयर मे बी सम केसेस वेयर द एंड रिजल्ट्स आर डिफरेंट. यहाँ पे a डॉट b आया है, सो देयर मे बी सम केसेस की कुछ और आए. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड. डिफरेंट अप्रोचेस कैन लीड्स टू डिफरेंट सॉल्यूशन, बट वन थिंग विल नॉट चेंज. इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल होगा और इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो सेम होगा. ठीक है, ट्रुथ टेबल इज नॉट गोइंग टू चेंज. और भी कोई सॉल्यूशन आता है तो ट्रुथ टेबल उसका भी सेम होगा. तो वेरीफाई कैसे करना है हमारा सॉल्यूशन सेम है, करेक्ट है एट द एंड? व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर दिस एक्सप्रेशन. ओके, 2 inputs are there, 4 possible combinations are there, 0 0 0 1 1 0 1 1. You will draw the truth table. जो भी simplified expression आया है उसका truth table draw करोगे. If these two are matching, then your result is correct. Okay, किसी और बंदे का कुछ और result आया है तो वो भी सही हो सकता है. Multiple possibilities are there. ठीक है, तो उसका भी फिर truth table आप निकालिए. इससे अगर मैच हो रहा है तो चांसेस है कि उसका रिजल्ट भी सही है. सो कमिंग टू दिस, इसका ट्रुथ टेबल तो वैसे ड्रॉ करवाया था मैंने, अपने बैच में तो करवाया था. सो वैसे ही वेरीफाई किया था. सो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो यू कैन सी दैट आई कैन टेक b कॉमन in this. From this two term I can take b common. So a bar b plus taking b common. और कॉमन लेने से होगा भी क्या ये भी देखना है आपको. So if I take b common, in bracket I will have c plus c bar, that gives me 1. ठीक है, so इसलिए मैं b को कॉमन ले सकता हूँ. So c bar plus c, that is going to be 1. Then we have a plus b bar c bar. Okay, and then a bar b plus this becomes 1. So I have b plus, then in this bracket I have a plus a dot b bar dot c bar, like this. Now from this two I can see that b is common, and if I take b common, in the bracket I will have a bar plus 1.
a bar plus 1, that is going to, a bar plus 1 is going to give the result 1. Okay, so a dot b bar dot c bar. So you have b plus a dot b bar dot c bar like this. Okay, now you can apply distributive law. So this is term 1. Okay, and what you can do, you can take b bar on one side, so b plus b bar, इसको इस तरह कैसे लिख सकते हैं, b plus b bar dot a dot c bar. So taking b plus b bar, and on the second hand I have b plus a dot c bar. So b plus b bar will become again 1, and this is b plus a dot c bar like this. So like this you can simplify it. ठीक है सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर ये 2 स्टेप्स दोबारा समझा दीजिए। ये वाला मैं शुरू Yes, से sir, last के शुरू से समझा देता हूँ। आप सबसे पहले तो देखो इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने से कोई चीज रिड्यूस होगा कि नहीं। ठीक है, तो पूरे इस पे एक्सप्रेशन को स्कैन करिए एक बार। तो स्कैन करने से आपको यहाँ पे दिखा कि b कैन बी टेकन आउट कॉमन, एंड इफ यू टेक b कॉमन इन ब्रैकेट यू विल हैव c प्लस c बार। तो c प्लस c बार 1 बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से b निकाल सकते हैं और हमें रिडक्शन मिलेगा। इन 2 टर्म्स में से एक टर्म्स रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने b कॉमन निकाल लिया, c प्लस c बार 1 हो गया। तो अब जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा a बार b प्लस b प्लस a डॉट b बार डॉट c बार। ठीक है, फिर यहां से देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है b इज कॉमन, और b कॉमन निकालोगे तो a बार प्लस 1। सो एनीथिंग ऑड विथ 1 इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू 1। सो इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। सो b डॉट 1 कैन बी रिटन सिंपली एज b। उसके बाद ये है a डॉट b बार डॉट c बार। अब मैंने यहाँ क्या किया है, b को एज इट इज लिखा है और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया है। एसोसिएटिव लॉ मतलब मैं किसी भी वेरिएबल को पहले लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, b बार को पहले लिखा, फिर a को लिखा, फिर c बार को लिखा। तो ये मैंने एसोसिएटिव लॉ से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो ये कहता है कि a प्लस b डॉट c, हमने इसको प्रूव भी किया है, दैट इज इक्वल टू a प्लस b a प्लस c। इन दोनों का एंड ऑपरेशन है, हमने जस्ट अभी ये प्रूव किया है। ठीक है, रूल्स पढ़ने के बाद। तो यहां पर अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस ब्रैकेट आई कैन पुट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब यह है कि भाई पहले मैं a और c बार के बीच में एंड ऑपरेशन करूंगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका एंड ऑपरेशन मैं b बार से करूंगा। ठीक है, सो दिस कैन बी डन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मेरे लिए ये एक वेरिएबल हो गया लाइक दिस, और ये a डॉट c एक पूरा कंप्लीट वेरिएबल हो गया लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाला लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो b प्लस जो पहला टर्म है वो b प्लस b बार, जैसे यहाँ पे a प्लस b लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, a प्लस जो बचा हुआ टर्म है। तो जो बचा हुआ टर्म है वो है a डॉट c बार। सो दिस इज b, और जो दूसरा टर्म था a डॉट c बार। ओके, ये a डॉट c मेरे लिए एक ही टर्म है, इसका रिजल्ट जो भी आएगा x y z वो एक ही वैल्यू होगी। तो b प्लस b बार, एंड ऑपरेशन बीच में ब्रैकेट लगा के b प्लस a डॉट c बार। ठीक है, b प्लस b बार फिर से 1 है। भाई मैंने लगाया तो एक स्टेप आगे की भी देख लेना कि लगाने से कुछ फायदा है कि भी नहीं है। सो b प्लस b बार 1 बन रहा है, इसलिए मैंने लगाया। ठीक है, तो ये 1 बन गया, डॉट यहाँ पे है b प्लस a डॉट c बार। ओके, एंड इट कैन बी रिटन एज सिंपली एज b प्लस
ए डॉट सी बार, दैट्स इट। इससे ज्यादा भी ये सिंप्लीफाई, इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, इसमें अगर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हो तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बी प्लस सी बार। ओके, बट इसको इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, अब किसको इंप्लीमेंट करें, तो कैसे चेक करना है, इसमें दो और गेट्स लगेंगे और एक एंड गेट लगेगा और एक नॉट गेट लगेगा। नॉट गेट सी बार के लिए, एंड गेट इन दोनों एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको एंड करने के लिए, और दो और गेट ये दो और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसमें कितने और गेट लगेंगे, सिर्फ एक और ऑपरेशन है, सो वन और गेट, वन एंड गेट एंड वन नॉट गेट। So if you compare these two, you can see that one OR gate less is required in this form, the LHS form. So इसको अब और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और गेट आपका बच जाएगा यहाँ, ठीक है। इसमें और कोई डाउट? नो सर। ओके, सो फाइनल चेक जो है, अब मैं क्या, कैन यू सी द लैब मैनुअल? यस सर। ओके, सो वेरीफाई कैसे करना है रिजल्ट ठीक है कि नहीं, तो ये जो ट्रुथ टेबल था, दिस वाज फॉर दिस एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस बी सी प्लस ए बी बार सी बार। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज किया है, बट रिजल्ट सेम आया, बी प्लस ए बार सी। ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी, इसको भी एक बार आप देख सकते हो। और ये सर्किट होता, अगर आप उसको नहीं सॉरी, ये सर्किट होता अगर आप एज इट इज इंप्लीमेंट करते। ओके, सो यू कैन सी 3 नॉट गेट, 5 एंड गेट एंड 3 और गेट। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज सिंप्लीफाई करते, एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल। सो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में क्या आया है, बी प्लस ए बार सी, सो बी, दिस इज ए सी बार, सो दिस इज बी प्लस ए बार सी। ओके, सो फाइनल ट्रुथ टेबल, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है उसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम आएगा। ओके, सो दिस आई लीव फॉर यू एज एन एक्सरसाइज कि भाई इसका ट्रुथ टेबल अब आपको दोनों को वेरीफाई करना है। ओके, तो अब आपके ऊपर है, आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें होल्ड बनेगा, ठीक है। और बीच में कोई डाउट आता है देन यू कैन एनी टाइम आस्क। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक KMAP। एक सर इन्होंने इसमें साइड राइट साइड पे z इज इक्वल टू a प्लस b, वो कैसे मतलब अलग से बनाया है गेट? ये तो सेकंड एक्सप्रेशन के लिए है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है ना, एक और एक्सप्रेशन था। ओके सर, ओके। ये उसके लिए है, ए बी बार प्लस बी, तो ये सेकंड यहाँ सॉल्व नहीं था तो उन्होंने पेन पेपर पे यहाँ पे सॉल्व कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। यस सर। ओके, सो बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नेट की कनेक्टिविटी इंश्योर करना ठीक है, एंड प्लीज सबमिट जरूर करना गूगल फॉर्म में। ऑटो सबमिट का प्रोविजन नहीं होता है अगर आप सबमिट नहीं कर पाए, और बिफोर टाइम करना, क्योंकि एक बार टाइम आउट हो गया तो रिस्पॉन्स आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द क्विजेस। कोई बीच में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक कल वाले लाइक क्विज में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा रहेगा या फिर डियर इस तरह के जवाब अवॉइड करता है टीचर। जो भी MCQ टाइप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स MCQ टाइप, जो आप जैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है इस तरह से। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, टीचर हूं मैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी मुझे। ओके, यस, ओके।